تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیکچر میں میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یعنی 2 یا 3 4 لیکچر جو ہوں گے وہ میرے خیال میں ٹوٹل 6 چیپٹر ہے یا 5 چیپٹر ہے، دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں صرف اور صرف ایکسرسائز کے اوپر ڈسکشن کروں گا، باقی ہم کچھ بھی نہیں کریں، صرف ایکسرسائز کے اوپر ڈسکشن. سو میں اپنا اسکرین کو شیئر کر رہا ہوں. پلیز اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور اس کے اوپر کمنٹس دیا کرے کہ ویڈیو کیسے بنی ہے. تھینک یو. سو لیٹ سے میرے پاس جو بکس اویلیبل ہے کلاس 4 کا، اسی سے میں آگے جاؤں گا، مطلب ایکسرسائز آپ کو بتاؤں گا. سو ہمارے پاس مطلب یہ آن لائن کسی کے ہم نے شیئر کیے تھے. تو فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس، ٹوٹل ہمارے پاس ہے 7 چیپٹر ہیں. تو میرے خیال میں 7 لیکچر اس کے اوپر میں کروں گا، اور اس میں صرف اور صرف میں مطلب ایکسرسائز جو اس کے ہوں گے وہ حل کروں گا، کیونکہ جو کچھ یہاں پہ پڑھا جاتا ہے، لکھا گیا ہے، وہ سارے ایکسرسائز میں اس کا نچوڑ لکھا ہوتا ہے. تو ایکسرسائز میں ہمارے پاس سب سے پہلا ایکسرسائز یہ ہے، اگر میں اس کو یہاں پہ رکھ دوں تو میرے لیے آسانی ہوگی. اوکے. سو I am going to start with the write the place value of each digit in the number. صرف سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھو کہ اس کی معنی کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میں پہلا نمبر، کیوں میں ایک ہی کوسچن کروں گا، 3 8 5 6 1 4 5 2. سب سے 2 باتیں یاد رکھو اس میں. ایک، کاما لگاؤ. کاما ہمیشہ کے لیے رائٹ سے لیفٹ کی طرف لگایا جائے گا. کاما کو کس طرح لگایا جائے گا؟ دائیں طرف سے بائیں کی طرف، اور 3 3 کی گروپ میں. کتنی کی گروپ میں؟ 3 3. سو میں بلیک مارکر سے کاما لگا رہا ہوں. ایک کاما یہاں پہ آ جائے گا، دوسرا یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک، کامے کی بات تو ہو گئی. دوسری بات، دوسرا یہ ٹیبل یاد رکھو، یہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اشاریہ کے بعد والے ہندسے کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پہ صرف اشاریہ سے پہلے والے ہندسے کی بات ہو رہی ہے. اشاریہ سے پہلے والے ہندسے کی بات ہو رہی ہے. یہ یاد رکھو، یہ ٹرمینالوجی وہ آپ کو، یہ ونز ہے، یہ ٹینز ہے، یہ 100 1000 10,000، ٹھیک، یہ 100,000، یہ ملین، اور یہ 10 ملین. تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کاما آپ نے کیوں لگا دیا؟ کاما اس لیے لگا دیا کہ یہ الگ الگ گروپ بن جاتا ہے. ٹھیک، یہ 100,000 ہے، دس از 100,000. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ذرا اس کی ویلیو بتا دو، یہ کون سی پوزیشن کے اوپر ہے؟ میں ریڈ مارکر سے کر رہا ہوں. دس از ایٹ پوزیشن آف ونس. تو اس کا مطلب ہے ٹو کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 1 سے، تو یہ کیا آ جائے گا اس کی پلیس ویلیو؟ سوری 2. ذرا 5 کا بتا دو. 5 کس پوزیشن؟ 5 کو تو میں لگا دوں گا، لیکن وہ ہے کس پوزیشن میں؟ وہ تو 10 کی پوزیشن میں ہے، تو وہ کیا آ جائے گا؟ 50. ذرا 4 کا بتا دو. 4 ضربیں کون سی پوزیشن میں؟ 100، تو وہ آ جائے گا 400. یہ تو بات ہو گئی، لیکن دوسرا مطلب اس طرح آگے جاؤ. اب دوسرا میں آسان طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، شارٹ کٹ پلیس ویلیو کو. یعنی جہاں پہ کوئی بھی ہندسہ ہو، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے اس 8 کا پلیس ویلیو کیلکولیٹ کر کے بتا دو. یہ 8 نیچے خود لگاؤ، ہر ہندسے کے لیے یہاں پہ کیا لگا دو؟ 0. ٹھیک، تو یہ اس کی پلیس ویلیو ہو گئی. اب اس طرح لکیریں نہیں کھینچو گے. آپ نے کس طرح حل کرنا ہے؟ فار ایگزامپل اس نے 8 کا نہیں، اس نے 5 کا مانگا ہے، اس 5 کا. تو اب کس طرح کرو گے؟ 1 2 3 4 5. سو 5 سے اس سائڈ میں لیفٹ، مطلب
राइट साइड में कितने वो है हिस्से मौजूद है, वो 5 हैं, तो मैं 5 को लगाऊंगा, ये वाला 5। उसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 5, ये इसका प्लेस वैल्यू होगा। तो इसका मतलब है कि प्लेस वैल्यू जो है वो जो भी हिस्से की प्लेस वैल्यू मांगी जाती है वो लगा दो, वो जिस पोजीशन पे है उसके पीछे जितने भी हिस्से हैं। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इशारिया से पहले वाले हिस्से की बात हो रही है। अगर इशारिया के बाद वाले हिस्से की बात हो जाए, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 4532 अशारिया, ये अशारिया है, 4392। इसमें मैं दो चीजों की वो मांगता हूं, तीन की प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। एक ब्लैक मार्कर से मैं इंसर्कल कर रहा हूं, ठीक। एक ब्लू मार्कर से मैं इंसर्कल कर रहा हूं, और एक को ग्रीन मार्कर से मैं इंसर्कल कर रहा हूं। इसकी प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बता दो। तो बहुत आसान है, पहले मैं इसका कैलकुलेट करता हूं। अभी जो मैंने तरीका बताया, या तो ये कर लो कि वंस, टेंस, 100, 1000, ये कौन सी पोजीशन के ऊपर है, तो 3 को लगा दिया। ये टेंस पोजीशन के ऊपर है, 10 में मल्टीप्लाई, टेंस का मतलब होता है 10, 10 में जमा दो, जरब दो, तो ये क्या आ जाएगा, 30। एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि इस 3 को खुद लगा दो और देख लो कि 3 के बाद इशारिया से पहले पहले कितने हिस्से आ रहे हैं, एक हिस्सा आ रहा है, एक ही हिस्सा। मैं इशारिया की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 30 है। दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका जो है, न सॉरी, दूसरा, इस 3 का मैं कैलकुलेट करता हूं। अब इस 3 में क्या है, इस 3 में ये हमारे पास टेंस, मैं इस लगाऊंगा इसके साथ, टेंस, इसको इस तरह लिखा जाता है, टेंस। टेंस का होता है मतलब होता है 1/10। तो इशारिया के बाद के हिस्सों में वंस नहीं होता, बस ये याद रखो, वंस नहीं होता, सीधा टेंस से शुरू होता है। ये क्या है, हंड्रेड्स, मैं इस तरह लिखूंगा, HS, 100, तो यानी ये बराबर होता है 1/100 का। ये 1000s, 1/1000 का। ये 10,000s, 10,000s, इस तरह। तो ये सारे हमारे पास आएंगे। अच्छा, अब या तो इस तरह कर लो कि ये टेंस हैं और ये किस पोजीशन पे हैं, ये 3 जो है ये हंड्रेड्स पोजीशन पे हैं। तो मैं इस तरह लिखूंगा, 3 ज़रबे हंड्रेड्स का मतलब होता है 1/100, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3/100, क्योंकि इस 3 के नीचे 1 है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन में ये आपस में ज़रब किए जाते हैं और इसको आपस में ज़रब किया जाता है। सो 3/100। अब इसको डेसिमल पॉइंट में तब्दील करो। इस जीरो के लिए ये 3 मौजूद है, क्या इस जीरो के लिए कोई हिस्सा मौजूद है यहाँ पे, नहीं, तो क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। एक के लिए क्या लगाना पड़ता है, इशारिया। तो ये इशारिया 03 बन जाता है, इशारिया 03। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, शॉर्टकट तरीका क्या है इसका, शॉर्टकट तरीका ये है कि इशारिया लगाओ, जहां पे इशारिया अपना है वहीं पे लगा दो। चलो लगा दिया इशारिया यहाँ पे, क्योंकि ये इशारिया यहाँ पे नीचे आया। इस 4 के लिए 0 लगा दो और हिंसे को खुद नीचे ले आओ। तो ये दूसरा तरीका, शॉर्टकट। जरा नू का कैलकुलेट कर दो, नू का भी इससे करते हैं। इशारिया खुद यहाँ पे लाया, 4 के लिए क्या आ जाएगा, 0। 3 के लिए क्या आ जाएगा, 0, और 9 को नीचे ले आया, तो ये इसका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक। अब मेरे ख्याल में आपको कोई मसला नहीं होगा, बाकी भी आप कैलकुलेट कर लें, यानी ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप खुद कैलकुलेट कर लें। अच्छा, यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये 9 की
मैं पहले नंबर लिखता हूँ 29231100। उसने खामे लगा दिए हैं। अगर ना भी लगाए हो, मैं फिर से मशवरा दूंगा, सबसे पहले खामे लगा लिया करो। 1 2 बस। एक तरीका तो शॉर्टकट ये है कि ये 9 नीचे ले आओ, और क्योंकि इसमें इशारिया मौजूद नहीं है, तो जितने भी हिस्से हैं सबके लिए 0 0 लगा दो। अब आप कहेंगे जीरो के लिए भी जीरो, हाँ जीरो के लिए भी जीरो। ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक। तो ये इसका प्लेस वैल्यू होगा। अगर वो कहता है ये क्या है, मतलब बता दो ये मिलियन है क्या है, व्हाट, तो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रेट से लिख रहा हूँ, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो 9 जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है, मिलियन। और ये याद रखो, मिलियन में कितने इनसे होते हैं, टोटल 7, और मतलब हमारे पास उसमें 6 जीरो होते हैं मिलियन, ठीक। इस तरह आप इन सर्कल का मतलब है कि ये जो सर्कल में आंसर दिया गया है इसका मालूम कर लो। बाकी इसका भी आप मालूम कर लो, 5 का, 2 का, 1 का, ठीक। आगे क्या है हमारे पास, अच्छा आगे हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन न्यूमरल। ये ऑलरेडी इस बुक के ऊपर लिखे गए हैं, फिर भी अगर आप कहते हैं नहीं हमें समझ नहीं आ रहा है, मैं फिर कहता हूँ ये टेबल याद रखा करो। वंस, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ कंट्रास्ट की वजह से, कंट्रास्ट अच्छा आ जाए इसका। वंस, टेंस, 100,000, ये 1000 को टी स्मॉल एच से जाहिर कर लिया करो, फिर 10 और 10,000 में, मतलब 1000 में आपको 10,000, 100,000, मिलियन। अभी उन्होंने पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 मिलियन, तो वो मिलियन तक चला गया है, तो 9 तो यहाँ पे आ गया, 9 मिलियन, ठीक। उसके साथ कुछ भी नहीं है, ये एक हो गया। अब यहां से लेकर 24,000, ये अलग चीज है। ये 1000 की कहानी है, 1000 तो यहां से यहां तक है। 24,000 तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 24 इस तरह लिखा जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे कोई हिंसा होता तो वो इस तरह लिख देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं लिख दो कि टू, तो 9 मिलियन, 9 मिलियन, इस टू को 224,000, 224,000 ये इस तरह लिखा जाता है फिर, ठीक। तो चूंकि उन्होंने कुछ 100 का कोई जिक्र नहीं किया है, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे जीरो पुट कर लूंगा। फिर लिखा हुआ है 55, देखिए 55, 55, 55, तो ये 1 से, ये 10 से, 55 तो इस तरह लिखा जाता है। अगर यहाँ पे क्या होगा, जीरो। अगर यहाँ पे कोई हिंसा होता, लेट से 3, तो वो लिख देते यहाँ पे 355, 355, ये भी लिखा गया है इस तरह, ये भी लिखा गया है इस तरह। और 54,000,011, ओके 54,000,011, ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक। तो 54,
54 मिलियन। ओ ये तो 54 मिलियन है। क्या मैं, ये 4 मिलियन है, 54 54, तो यहाँ पे 10 मिलियन भी साथ लिखना पड़ेगा। अब ये 54 मिलियन, तो 54 मिलियन 11 11, बाकी तो कुछ है नहीं, 11 यहाँ पे आ जाएगा, तो बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, जीरो। सो इसको इस तरह लिखा जाए, write the number by putting commas। yeah, this is important। commas को हर 3 हिस्से के बाद, जैसे मैं ये वाला नंबर ले लेता हूँ 20119211, सो 1 2 3, तो यहाँ पे मैं रेड मार्कर से कामा, फिर कामा, ये हमारे पास हो गया। कामा हमेशा राइट साइड से पुट किया जाएगा और कितने हिंसों के बाद लगाया जाएगा, 3 हिंसों के बाद लगाया जाएगा। So that is all about this one. Now next question. Okay. Next question is about write the place value of underline digit in the following number। ये ऑलरेडी हमने लिख दिए बहुत सारे प्लेस वैल्यू। जे का क्या है, अंडरलाइन का मतलब है जिसके नीचे लाइन लगाया हुआ है, इसका प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करना। जरा इसको देख लेता हूँ, इस नंबर 57760626। सो एक का मैं यहाँ पे, एक का मैं यहाँ पे, और इसका उन्होंने क्या मांगा है, इन सर्कल अंडरलाइन बोल्ड लिखा गया है, तो ये सारी एक ही बात है। तो मैं शॉर्टकट तरीका अगर यूज कर लो तो 5 लगा दिया और इसके नीचे 2 3 4 5 6 7। अगर वो कहते हैं ना वर्ड्स में बता दूं, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये 50 मिलियन हो गया। क्या हो गया, 50 मिलियन। 50 मिलियन इज द प्लेस वैल्यू। अच्छा, ये क्या है, रीड द फॉलोइंग नंबर एंड राइट देम इन वर्ड्स। इसको रीड कर लो और वर्ड्स में लिखो। मैं ये वाला हल कर लेता हूँ। मैं सबसे लिखूंगा पहले कि वंस, मैं ब्लैक मार्कर से बना रहा हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और इसके बाद बिलियन। लेकिन वहां तक फिलहाल जाने की जरूरत नहीं, तो यहां से लगा दो, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 0 0 9 7 4 1। तो इसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ी। अब इसको लिखो, बहुत आसान है। मैं फिर से कह रहा हूं, कामे में तकसीम कर लो, ब्रो मार्कर से कर रहा हूं, ब्लो। 3 ग्रुप बनाओ, फिर सब कुछ आसान। क्या इसके साथ कोई और हिंसा है, नहीं है दोस्त, तो मैं लिखूंगा 1 मिलियन। 1 मिलियन, तो ये हो गया। इसको किस तरह लिखूंगा, अगर कामा देते हो दे दो, अगर नहीं देते कोई मसला नहीं। 400, मैं स्पेस की वजह से 4 को इस तरह लिख रहा हूं, आपने FOUR लिखना होता है। 400, 79, 79,000। देखे यहाँ पे स्टॉप हो गया मसला। जो ही स्टॉप हो जाता है तो आखिरी लफ्ज क्या है उसका, 1000। ठीक, और फिर से जब मामला शुरू हो गया है, कुछ है नहीं है, नहीं है, एंड लास्ट में 6, यह उसका आंसर होगा।
ओके, तो राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपैरिजन कहाँ से शुरू करना है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये नंबर्स है, पहले तो बंदे को अगर ये पता हो कि असेंडिंग किसको कहते हैं, असेंडिंग में एक छोटे से शुरू होता है और किधर जाओगे आप? बड़े की तरफ। जबकि डिसेंडिंग में बड़े से शुरू होके किधर आओगे? छोटे की तरफ। ठीक, तो चलो, अगर मैं ये उन्होंने डिसेंडिंग मांगा है तो मैं सबसे पहले बड़ा नंबर लगाऊंगा। बड़ा बड़ा, अब बड़े को कंपेयर करने के लिए ये हिंद से कंपेयर कर लिएगा। तो ये 69 है, ये 69 है, ये 69 है, ये 70 है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? 70। अच्छा, दूसरी बात, इससे मैं पहले मैं भूल गया, वो ये है कि सबसे पहले सब में हिंद से गेन लो। हिंसों की तादाद कितनी है सब में? तो मैं अगर गिन लो सब में, 3 3 2, 3 3 2, 3 3 2, 3 3 2, बस ठीक है, सब में बराबर है। जब सब में बराबर हो, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक, सब में ये बराबर है, तो उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ये जो फर्स्ट, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपने फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करना है। सारे 69 है, जबकि एक 70 है, तो 70 वाला सबसे बड़ा है। 0 0, बाकी को बिल्कुल कंपेयर ना करो, सीधा लिखो, ये फर्स्ट आएगा। मैं इस तरह लिख रहा हूं, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ। अब दूसरे में एक तो चला गया, अब हमारे पास कितने रह गए? 3। इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? चूंकि पहले दो डिजिट तो कंपेयर हो चुके हैं, अब हमने किसको कंपेयर करना है? मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं। मैंने उसके बाद दो डिजिट जो है वो कंपेयर करने हैं। ये 54 है और ये भी 54 है, लेकिन ये 59 है, तो ये वाला ज्यादा होगा। सो 96642315 ये होगा। अब दो तो चले गए, लेकिन तीसरा हमारे पास दो रह गए हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? इसमें करना ये है कि इसमें ये वाला डिजिट कंपेयर करो। एक हो या दो हो, डजेंट मैटर। अगर आप कहते नहीं पहले भी आपने दो दो किए हैं, तीन तीन किए हैं, तो चलो दो दो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। दो करते हो, तीन करते हो, तो यहाँ पे 23 है और ये 30 है, तो ये वाला ज्यादा है, जबकि ये वाला छोटा है। तो पहले नीचे वाला लिखा जाएगा 69, 54, ये, और बाकी जो रह गया वो। तो ये इसका तरीकाकार होता है। तो एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये असेंडिंग ऑर्डर में ये कह रहे हैं कि इसको लिखो, यानी असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा? हाउ आई विल राइट इन असेंडिंग। फिर से कंपेयर कर लिया करो। कौन सा सबसे छोटा होगा? 30। साढ़े 38, 39 वगैरह है, ये 30 है। ओ, पहला स्टेप में फिर से बोल जाता हूँ, नंबर्स को चेक करो। ठीक है, ठीक है, 3 3 2, 3 3 2, ठीक है। तो ये वाला पहला लिखा जाएगा, ये सबसे छोटा है, 30, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये एक तो चला गया, कितने रह गए हमारे पास? 3 रह गए। उसके बाद दूसरा नंबर 580, 580, 580, ये तीनों तो एक जैसे हैं। ठीक, सारी सारी फॉर दैट। अच्छा, अब इन तीनों में फिर से पहले दो नंबर को कंपेयर करो, कौन सा छोटा है? 37। फिर से 38। फिर से
39 सबसे बड़ा, बाकी को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें डायरेक्टली पता, हाँ ये अगर सारे सेम होते हैं, मतलब यहाँ पे भी 39 होता है, यहाँ पे भी 39 होता है, यहाँ फिर आपको आगे की जो हिंसे हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। चलो आगे क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। ये द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, ये सारे मेरे ख्याल में आप अब क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, एडिशन है उसमें, एडिशन में क्या है, वर्टिकली ऐड कर लो इसको, 60 मैं लिखूंगा 1 6 0, सॉरी फॉर दैट, ये बंदे की हेड के ऊपर आ गया, बच्चे की तो दिखाई नहीं देगा इसलिए। अच्छा, 16 0 0 1 0, ये अब इसको किस तरह लिखा जाएगा, याद रखो इसको इस साइड से लिखा करो, 0 0 0 7 8। बाकी आप में से ऐसा कोई कमजोर बंदा नहीं होगा जो इसको ऐड नहीं कर सकता है। 13 एक कैरी आ जाएगा और 2 10, ये आपका आंसर आएगा। सो एडिशन जो है वो इतना, ऐड द फॉलोइंग, इसको लगाओ और साथ में इसको ऐड कर लो। ओके, ये जो क्वेश्चन है, राइट द नंबर विच इज, राइट द नंबर विच इज मोर देन, which is 5,000 more than 10,000, वो सारी या हमारे पास 100,000। सो ये क्या कहता है कि ऐसा नंबर लिख दो, इस क्वेश्चन का मानी क्या है, ऐसा नंबर लिख दो, मैं मिटा रहा हूं इस लकीर को, ऐसा नंबर लिख दो जो 1 लाख से 5,000 बड़ा हो। अब आप कहेंगे ये किस तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, 1 लाख लगा दूं, इसको हम 100,000 भी कहते हैं, 1 लाख लगा दिया, उसके साथ किसको जमा कर लो, 5,000 को जमा कर लो, इस साइड से लिखो, तो 1,05,000, या इस तरह समझो कि एक बंदा है उसके पास 1 लाख रुपए है, 5,000 उसको और दिए गए तो 1,05,000 बन गए ना। तो वो कहता है राइट द नंबर विच इज 5,000 मोर देन 1 लाख, ऐसा कोई नंबर लिख दो कि अगर 1 लाख से वो 5,000 बड़ा हो, तो 5,000 बड़ा हो तो 1,05,000 है ना। इसी तरह 2,000 मोर देन दिस, तो इसको इसके साथ जमा करना। तो ये हो गया हमारे पास सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम ए बिगर। ठीक, ये सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कैसा है, जरा देख लो इसको, स्मॉलर वन एंड बिगर वन, इसमें भी 3 × 3 6, 3 × 3 6, तादाद एक जैसा है, चलो सही है। स्मॉलर कौन सा होगा, बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। कैसे पता चला, पहले दो हिस्से इसके 45 है और इसके 15 है, 45 बड़ा है तो 4 5 4 2 0 0 0 0 0 4 5 1, इन इसके दरमियान क्या लगा दो, माइनस, तो 0 से 0 0
2 से 0 तो 2, यहाँ पे 4 से अगर 4 को माइनस किया जाए, 5 से 5 को माइनस किया जाए, सो ये मेरे ख्याल में इतने मुश्किल तरीन क्वेश्चन नहीं है जो आप हल नहीं कर सकते। ठीक, माइनस कर लो, बड़े से छोटे को माइनस कर लो। ये भी माइनस है, हॉरिजॉन्टली दिए गए हैं, लेकिन हमें इसको वर्टिकल लिखना पड़ेगा। मतलब अब वो उस इनका क्वेश्चन का मतलब है कि आप पहले इसको इस तरह लिखो और यानी 7001। हाँ, कोई शायद आप में से कोई इस क्वेश्चन को इस तरह लिखिए 58001007, तो ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन, इस दूसरा जो नंबर होगा वो इस साइड से लिखा जाएगा, हुआ वो ज़रब सारी जमा में हो या मनफी में, तब इसको आप माइनस कर लो। सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये क्वेश्चन अक्सर आता है टेस्ट में भी कि सब्सट्रैक्ट 73 फ्रॉम 100। लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 73 फ्रॉम 100, तो वो इस तरह कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन का मतलब है सब्ट्रैक्ट 1 लाख या 100,000,000 100,000 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इस नंबर को लगा के इससे ये वाला माइनस कर। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको लगा के 600,000 से 1000 को अगर मैं माइनस कर दूं तो इससे आ जाएगा 500,000। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, वो लिखा हुआ है ए फैक्ट्री, ये वाला ए फैक्ट्री हैव दिस वन जूस पैक इन जनवरी, दिस वन इन फरवरी, हाउ मेनी पैक्स। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को मैंने पहले लेक्चर में बताया कि उसको किस तरह हल करना पड़ेगा। आप ये ना समझो कि ये जूस है, ये समझो कि मेरे पास 5 जूस जनवरी में है और 2 जूस फरवरी में है। हाँ, मेरी जूस मेरे पास कितने होंगे, 5 जमा टोटल 5 जमा 2 7। ओह, ये तो जमा की बात है, बस चलो सही है, इसको आपस में जमा कर लो। ठीक, फिर इन इलेक्शन में हमारे पास अली गाट दिस वोट, जाहिद गाट दिस वोट, फाइंड द टोटल वोट। चलो मैं इलेक्शन, ये अली और जाहिद को छोड़ो, मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ, मैंने इतने इलेक्शन लिए वोट्स लिए और फलाने ने इतने लिए, टोटल कितने वोट्स हो गए, उनको जमा करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो जमा करवा दो। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें स्टॉक ऑफ अ बुक इन द शॉप बुक स्टोर इस्लामाबाद, इसमें इतने किताबें हैं। स्टॉक ऑफ द बुक इन बुक लाहौर, लाहौर में जो है उसमें इतनी किताबें हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक, जाहिरी बात है, मेरे पास एक अलमारी है उसमें 50 किताबें हैं, दूसरी अलमारी है उसमें 100 है, टोटल किताबें मेरे पास कितने हैं, 150। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 6, ये एमसीक्यूज आता है, ये एनटीएस में आता है, क्योंकि बाकी आसान है, ये एनटीएस में आता है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6। The difference between largest 6 digit number and largest 5 digit number। एक, अब आप कहेंगे आप तो हर वक्त इस साइड से लेते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता चलता है कि यहाँ तक टोटल आएंगे, अदरवाइज आपको ये इस साइड से लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो इसका डिफरेंस निकालो, 0 0 0 0 0 9। तो ये आपका क्या हो गया,
That will be your result. Price of the two houses purchased by a man. एक बंदा है, बंदे को छोड़ो, मैंने 2 घर खरीदे और 50 लाख के खरीदे. If the price of one, अगर एक का 20 लाख है तो दूसरे का कितना होगा? वो 30 लाख है. किस तरह पता चला? 50 से 20 को निकालो तो ये माइनस की है. इस तरह खुद को कन्वर्ट कर लिया करो. Maria has this one rupees than Alina, more than Alina. Maria के पास इतने पैसे ज्यादा है अलीना से. If Alina have this one, अच्छा मैं इसको इस तरह से नहीं लूंगा. मैं कहूंगा कि मेरे पास अली के पास जो जितने पैसे हैं उससे 500 रुपए ज्यादा है. अगर अली के पास 1000 रुपए है तो मेरे पास कितने होंगे? अली के पास अगर 1000 है तो मेरे पास कितने होंगे? क्योंकि मेरे पास अली से पैसे ज्यादा है. कितने? 500. तो 500 अगर ज्यादा है तो मेरे पास 1500 होंगे. अली के पास 1000 रुपए है और मेरे पास मेरे पास अली से 500 ज्यादा है तो कितने हो जाएंगे? 1500. किस तरह पता चला? अली के पास जितने पैसे है उसमें से 500 ऐड कर लो तो 1500 आ जाएगा. ठीक. तो इस तरह मारिया के पास इतने पैसे ज्यादा है अलीना से. अलीना के पास ये है. मारिया के पास कितने होंगे? अलीना के पास अगर ये है तो अच्छा, अब मेरे पास, मैंने इसको थोड़ा सा, मेरे पास, मैं इस तरह भी लिख सकता हूं इसको. मेरे पास 1500 रुपए है. 500 मेरे पास टोटल, अगर मैं वही नंबर लिख दूं तो 500. मारिया हैज मोर रुपीज देन अलीना. ओके, मेरे पास अलीना से पैसे ज्यादा है. कितने पैसे ज्यादा है? मेरे पास अली से पैसे 500 रुपए की ज्यादा पैसे हैं. अगर अली के पास 1000 की नोट है तो मेरे पास पैसे कितने होंगे? तो जाहिर बात है मेरे पैसे अली से 500 रुपए ज्यादा है तो 1500 होंगे, तो जमा करना पड़ेगा. राबिया हैज दिस वन लेस देन अरसलान. राबिया के पास इतने पैसे कम है अरसलान से. तो अगर अरसलान के पास इतने हैं तो राबिया के पास कितने होंगे? हाउ मच राबिया है, माइनस करना पड़ेगा. तो ये इसको आपस में मतलब अपने उसमें कर लिया करो कन्वर्ट. अपनी जहन में मतलब अपने आप के ऊपर अप्लाई कर लिया करो, फिर कोई मसला नहीं है. अब इसको मल्टीप्लिकेशन है, मेरे ख्याल में मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा. मल्टीप्लाइड बाई 30, मल्टीप्लाइड वर्टिकली मल्टीप्लाई सॉल्व करो, डिवाइड बाई नंबर. डिवीजन को डिवीजन भी इतना मुश्किल नहीं है. हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं ये वर्ड्स प्रॉब्लम. तो वर्ड्स प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन को जरा पढ़ लो कि वो क्या कहता है, फिर दूसरा पढ़ते हैं. कहता है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ फार इट विल आफ्टर 13. अगर मेरा अपना वो आप ले लें ओपिनियन, तो मैं ये इस क्वेश्चन को इस तरह हल करूंगा. देखिए इसमें 2 चीजें हैं. एक डिस्टेंस है, फासला जिसको कहा जाता है, ठीक, और दूसरा है टाइम. तो जो चीज दिया गया है, पहले क्वेश्चन को देखो, फासला दिया गया है, ओके, 1 आवर टाइम दिया गया है, फिर क्या दिया गया है? 13 आवर. और क्या मांगा गया? हाउ फार विट एल ट्रेवल, डिस्टेंस मांगा गया है. जो चीज मांगा गया हो उसको यहाँ पे लिखा करो इस तरह. जो चीज मांगा गया हो उसको यहाँ पे, जो चीज दिया हो वो उसको यहाँ पे. 1 आवर, अगर 1 घंटा की टाइम, मतलब यहाँ पे लिखो टाइम जो है वो आवर्स में है, तो 162 किलोमीटर का फासला तय होता है.
اگر ہمارے پاس 13 آورس کی ٹریول کرے گا تو کتنا فاصلہ ہوگا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اتنا تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میں اگر 1 گھنٹہ میں 50 قدم چلتا ہوں تو 13 گھنٹے میں کتنا چلوں گا؟ یہ تو زیادہ ہوگا، کم از کم اس سے زیادہ ہوگا۔ چلو اب اس سائڈ کو بھی دیکھو، کیا یہ 1 سے کدھر چلا گیا ہے؟ 13 زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے؟ زیادہ۔ تو یہاں پہ بھی یہ کیا زیادہ ہو رہا ہے نا، اگر کم ہو رہا ہو تو یہاں پہ کم لکھا کرو، اس کا فارمولا الگ ہے، اور اگر زیادہ ہو رہا ہو تو یہاں پہ زیادہ، اگر زیادہ ہو رہا ہو تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر زیڈ اپلائی کرو۔ زیڈ کا مطلب ہے، یہ سب سے آسان طریقہ ہے، کیونکہ آگے ریشو پروپورشن کے بھی کوشچن آئیں گے تو اس میں بھی یہی آپ کو کام آئے گا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ سارے کوشچن کو ایسی سے سالو کرو۔ تو میں اس کو اس طرح لکھوں گا، 1 یہاں سے شروع ہو کے پھر کدھر چلا جاؤں گا 162، پھر کدھر چلا جاؤں گا 13، پھر کدھر چلا جاؤں گا x۔ اس کو ہم کہتے ہیں سائڈز، جس کو ہم طرفین کہتے ہیں، اس کو ہم میڈینز کہتے ہیں، اس کو وسطین کہا جاتا ہے۔ تو سائڈ کو آپس میں ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، تو 1 ضرب x سے تو x آئے گا، اور وہ برابر ہوگا 162 ضرب 13 کا۔ تو اس کو آپس میں ضرب کر دو، جتنا بھی آئے گا وہ اس کا فاصلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو میرا تو اپنا وہ ہے کہ ریشو پروپورشن کی جو کوشچن بنا ہے وہ بنا دو تقسیم، اور وہ خود کرے گا، صرف آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرے کو دیکھو، مزر ٹریول دی کلومیٹر سوری میٹر ڈیلی، ہاؤ مچ ڈسٹینس اٹ ول کور ان 15 days۔ پھر سے ہمارے پاس کیا ہے؟ میٹر ڈسٹینس ڈیلی ٹائم، ہاؤ مچ ڈسٹینس نہ معلوم ہے، جبکہ تو میں کہوں گا ٹائم معلوم ہے اور ڈسٹینس نہ معلوم ہے۔ ٹائم پہلا کتنا دن گزر گئے ہیں، یہاں پہ ٹائم ڈیز میں دیا گیا ہے۔ ٹھیک، سو 1 ڈے میں وہ کتنا کرتا ہے؟ 8240 میٹر کا ڈسٹینس میٹر میں۔ ٹھیک، دوسرے میں کیا کر لیتا ہے؟ 15 دن میں وہ کتنے کا کرے گا؟ اب کوشچن کو سمجھو، پھر سے میں کہہ رہا ہوں، یہاں پہ ڈیز کیا ہو گئے ہیں، وہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے ڈائریکٹلی، کیا ہو گیا ہے؟ زیادہ، پہلے 1 دن تھا، ابھی 15 دن۔ یہاں پہ آپ نے تھوڑا سوچنا ہوگا، 1 دن میں اگر بندہ اتنا فاصلہ طے کرتا ہے تو 15 دن میں وہ زیادہ ہو کرے گا، کم از کم زیادہ کرے گا۔ تو زیادہ یہاں پہ بھی، اگر دونوں زیادہ ہوں، یہاں پہ بھی زیادہ یہاں پہ بھی زیادہ، یا یہاں پہ بھی کم یہاں پہ بھی کم، ٹھیک، تو زیڈ کو اپلائی کرو۔ کس کو اپلائی کرو؟ زیڈ کو۔ ہاں اگر یہ ایسا ہو، میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کم ہو اور یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہو، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچرز ہو گئے تو اس میں کریں گے۔ اس کے اوپر n اپلائی ہوتا ہے، اس کو ہم انورس پروپورشن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انورس پروپورشن، n اپلائی ہوتا ہے۔ چلو وہ پھر آئیں گے آگے، تو وہ بھی میں سمجھا دوں گا کہ کس طرح۔ تو یہ تو آسان ہو گیا، یعنی 1:8:40 پروپورشن 15:x۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ آپ کس طرح لکھ رہے ہو، دیکھیں یہاں سے شروع ہو کے ادھر جاؤ، یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ آ جاؤ، یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہو جائے، تو وسطین طرفین کو اور وسطین سائڈز، اور تو 1 into this x آ جائے گا، جبکہ یہ برابر ہوگا درمیان والے کا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ اس کو بھی حل کر سکتے ہیں۔ اچھا شاید اس میں کہیں پہ تقسیم کا ہو، لیکن آپ کو کم از کم یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ اس میں تقسیم آ رہا ہے یہ ضرب آ رہا ہے، یہ خود سے کرتا ہے۔
Numan read these pages of a book each day. How many days they will take to read this? अच्छा ये इसमें भी ज़रब है. In a camp, these children are divided into groups. Each group have 25 children. Find the total number of groups. अब आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन को किस तरह हल करेंगे? प्रैक्टिस कर लिया करो. हाँ, चिल्ड्रन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स. मैं चिल्ड्रन को लिखूंगा, ग्रुप्स जो चीज मांगा गया है वो यहाँ पे लिखा करो. अच्छा, अब आप कहेंगे ये तो लिखा नहीं गया है. यहाँ पे लिखा गया each group have how many children? 25 children. अगर 8000 चिल्ड्रन हो तो कितने होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे ज्यादा हो गए हैं. अगर 25 का एक ग्रुप बन रहा है तो 8000 के ज्यादा ग्रुप्स बनेंगे, तो यहाँ पे भी ज्यादा हो रहा है. तो फिर से मैं किसको अप्लाई कर लूंगा? जेड को अप्लाई कर लूंगा. अच्छा, ये लिखा गया है कि a horse run at a speed of this kilometer per hour. Find the distance covered by horse in 12 hours. इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकल चीज बता देता हूँ. इसमें हमारे पास क्या है? डिस्टेंस. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हॉर्स इन 12 आवर्स. तो डिस्टेंस न मालूम है जबकि टाइम हमारे पास मालूम है. अब आप कहेंगे कि पहले में तो कुछ नहीं दिया गया है. इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ. ये जो चीज दिया गया है 56 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब होता है कि ये घोड़ा 56 किलोमीटर का फासला तय करता है कितने घंटे में? 1 घंटे में. बस अगर ये चीज आप समझ गए हो ना तो कोई मसला नहीं है. ये और जगहों में भी होगा हमारे पास, जैसे ट्रेन जा रहा है, गाड़ी जा रही है, इस तरह की हमारे पास कुछ हमारे पास बनता रहेगा. सो हमारे पास टाइम कितना है? 1 आवर. तो फासला कितना तय करता है? मैं यहां से लेता हूं ये वाली पॉइंट्स, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ. 56 किलोमीटर पर आवर. अगर 12 घंटे गुजर जाते हैं, फासला कितना तय करेगा? टाइम क्या हो गया है? ज्यादा. डेज की सारी डिस्टेंस क्या होगा? वो भी ज्यादा तय होगा. सो किसको अप्लाई करो? जेड को. अब a bold manufacturing company pack this one boards in a carton. How many boards are there in a carton? In a carton. एक कार्टन में कितने बोर्ड्स हैं? 1200. अगर 35 कार्टन हो तो उसमें कितने बोर्ड्स होंगे? ज्यादा. यस, अप्लाई होता है. 100 कैंडीज इन. बस थोड़ा सा, अगर ये 10-12 क्वेश्चन है, 5-4 क्वेश्चन है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे कुछ भी नहीं रहेगा इसमें. आपको ये रेशो प्रोपोर्शन का सब कुछ समझ आ जाएगा. फिर हमारे पास दमास रोल है. दमास रोल में जाहिर बात है ये भी इतना मुश्किल नहीं है. क्वेश्चन हल कर लेते हैं इसके ऊपर भी. मैं क्या कर लेता हूँ, हल कर लो. तो सबसे पहले मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूँ. सबसे पहले डिवीजन, क्योंकि दमास का मतलब होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो 14 डिवाइड बाई 7 से क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 10. ये अपनी जगह पे हो जाएंगे. फिर किसको हल करना है? इसको. 7-56 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 46. ठीक. इसमें भी पहले ये क्वेश्चन दूसरा भी हल करते हैं.
पहला ये हल करो, तो 12 तकसीम 4, 4 3 है 12, किसी को नहीं आ रहा हूँ बिल्कुल, जवाब क्या आया? तो n 2 के बजाय इसको मिटा दो और इसके बजाय क्या लिख दो? 3। अगर इसके बजाय 3 लिख दो तो ये इस तरह बन जाएगा 6 ज़रबे 5 जमा 3। ठीक, फिर 6 ज़रबे 5 से क्या आ जाएगा? 30 जमा 3 से, तो आपका टोटल रिजल्ट क्या आएगा? 33। तो मेरा अपना मशवरा है कि ये सारे क्वेश्चन आप खुद हल कर लो, फिर आपको दमास रूल का समझ आ जाएगा। अच्छा, आगे है सुबिया हैज दिस RS. Subia has RS 4000. She bought 2 books consisting of costing of 350 each and 5 notebook costing of 60 each. Find the amount left with her. Okay. अब इस तरह समझो, इस क्वेश्चन को किस तरह हल करना है। मेरे पास टोटल 4000 रुपए हैं। मैं बाजार चला गया और मैंने 2 नोटबुक खरीद लिए, सारी बुक्स खरीद लिए, और हर एक की कीमत ईच का मतलब है हर एक की कीमत 350 है। तो 2 की क्या हो जाएगी? 350 जमा 350, हाँ हाँ 700। किसी को नहीं आ रहा हो तो 350 ज़रबे 2, 0 2 5 10, 1 2 3 6 जमा 1 7। तो इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर ये बहुत सिंपल सा। चलो अभी ये समझो कि मेरे पास 4000 रुपए हैं, 700 रुपए के मैंने बुक्स लिए, तो 4000 से माइनस करने पड़ेंगे, या दुकानदार को मैंने दिए हैं तो माइनस करने पड़ेंगे। तो कितने रह जाएंगे? 0 0, 10 आ जाएगा, 3 3, और मेरे पास 3300 बच गए। फिर मैंने 5 नोटबुक खरीद ली है और हर एक की कीमत क्या है? 60। अभी 60 ज़रबे 5, तो क्या आ जाएंगे? 5 सिफर सिफर, 6 5 30, तो 300 रुपए के नोटबुक खरीदे, तो पैसे देने पड़ेंगे ना, तो ये भी खरीदें। मेरे पास आखिर में कितने जेब बचेंगे जेब में? 3000। फाइंड द लेफ्ट अमाउंट विद हर, तो मैं उसके साथ 3000। शॉपकीपर दिस वन पैक दिस कुकीज। तो शॉपकीपर जो है वो क्या करता है? Bought 23 packets of biscuit at the rate of 15. He sold them at the rate of 20 each. How much profit did he make? अच्छा, शॉपकीपर को गोली मारो। मैं कहता हूँ मैंने 23 पैकेट्स बिस्किट के खरीदे। मैं इस तरह लिखूंगा, बिस्किट के 23 पैकेट्स खरीदे, और हर पैकेट की कीमत क्या है? हर पैकेट का कीमत जो है वो 15 रुपए है। तो 23 अगर 23 के कितने बनेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? 23 ज़रबे 15, 0 23, 3 5 15, 1 2 5 10 जमा 11, 105 4 3 345। ठीक, तो 23 की जो प्राइस है वो क्या हो गया? 345। ठीक, he sold that at the rate of 20 each. उसने इसको सोल्ड कर दिया। सोल्ड का मतलब है फरोख्त कर दिया। कितने का? 20 रुपए का एक। खरीदा कितने का था? 15 का। तो हर एक पैकेट में कितना मुनाफा उन्होंने कमाया? तो मैं ये लिख देता हूँ कि 2 तरीके हैं इसको हल करने के। या तो इस तरह कर लो कि 20 ज़रबे 23 भी मालूम कर लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये कितने आ जाएंगे? अगर 20 के हिसाब से मैं, ये 15 के हिसाब से मैंने लिए, तो इतने पैसे मैंने दिए थे, और 20 हिसाब से मैंने जब भेजे तो 23 ने मुझे कितने पैसे कमा के दिए? 460 रुपए। तो आपको इसके डिफरेंस का पता चल गया, यानी 460 से
अगर मैं किसको माइनस कर लूँ, 343 को माइनस कर लूँ, सो 5 और हमारे पास 115 रुपए का मुझे मुनाफा होगा। ठीक, या इस तरह कर लो, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ कि चूंकि मैंने हर एक पैकेट पे कितने रुपए कमाए, 5 रुपए। टोटल कितने पैकेट्स हैं, 23 रुपए। 23 पैकेट्स हैं और हर पैकेट के ऊपर मुझे 5 रुपए मिले, तो 3 पंजे 15, 1 2 पंजे 10, मैं गया। सो आपकी मतलब जहन की बात है कि आप किस तरह इसको डील करते हैं। सब अपडेट्स 30 एंड 2, ये बस कर लो खुद। बाकी प्रीव्यू क्वेश्चंस हैं। रिव्यू में हम क्या करते हैं, S2 का प्लेस वैल्यू ये कर दिया है ऑलरेडी। फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स, इसको वर्ड्स में लिख दो। ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन कर लूँ ये वाला, तो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये 67,423,682, ये इसका रिजल्ट यानी 60 से। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही, आपने पहले मैंने कर लिए, असेंडिंग का भी कर लिया, साल 20, ये भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये सारे हो चुके हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मुश्किल नहीं है। तो दमास रोल्स हैं, दमास रोल मैंने कहा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो तो सब कुछ आपको आ जाएगा। ये प्राइस वाले, मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ, हर चीज को अपने अपने में वश नहीं है यहाँ पे। आपको आपकी जेब में पैसे हैं, यू बा ड्रेस, मैं दुकानदार चला गया, 1200 का मैंने कपड़ा खरीदा, तेरह पेस के शॉक्स खरीदे, तो वो सॉक्स 30 के थे, तो 30 ये तो 90 रुपए हो गए। हाँ, 1200 का मैंने ड्रेस खरीदा था, तो टोटल 1290 हो गए। और 2 टॉवल्स खरीदे 150 के, चलो 150 और 150, ये तो 300 ये हो गए। सो 1290 जमा 300, 1590 हो गए। फाइंड कितने मेरे पास जेब में रहेंगे, तो 1590 से माइनस कर लो। तो ये सारा अगर अपने आप के ऊपर अप्लाई करोगे तो कोई भी इसमें मुश्किल नहीं होगा। तो ये होगा, फिर ये की पॉइंट्स हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा उसमें हमें फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।